السلام علیکم اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کا ایک دوسرے کی بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں پیپلز پارٹی نے حکومت کو بجٹ منظوری کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ ذرائع کے مطابق وسائل اور مسائل کو دیکھتے ہوئے دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو سپیس دیں گی۔ بعد قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ دوران ملاقات آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق قیام امن، قانون کی بالادستی اور عوامی مسائل کے حل کو اولین ترجیح قرار دیا گیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی پر صدر آصف علی زرداری کو مبارکباد دی اور مسکراتے ہوئے کہا، نوجوان بلاول نے ہم سے بہتر انتخابی مہم چلائی، جس پر صدر زرداری نے جواب دیا، آخر بیٹا کس کا ہے؟ بجٹ کس دن پیش ہونا ہے؟ حکومت اور ایوان صدر کی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ ایک مرتبہ پھر تاخیر کا شکار ہے۔ نئی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا۔ اس سے قبل 5 جون کو بجٹ آنا تھا، جو 10 جون تک مؤخر ہوا تھا۔ وفاقی بجٹ 2026-27 کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ اب 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں دوسری مرتبہ تبدیلی متوقع ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بجٹ ایک مرتبہ پھر تاخیر کا شکار ہو چکا ہے اور نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اس سے قبل 5 جون کو بجٹ آنا تھا، جو 10 جون تک مؤخر ہوا تھا۔ وفاقی بجٹ 2026-27 کی تاریخ ایک بار پھر تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی بجٹ اب 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں دوسری مرتبہ تبدیلی متوقع ہے۔ پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ عوام کو ریلیف پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ پنجاب کے صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا اعلان۔ کہتے ہیں، پنجاب میں پہلی بار پری بجٹ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت ہے کہ پنجاب میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ کانفرنس میں موصول ہونے والی سفارشات کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں پری بجٹ مباحثوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ میں تاخیر کے باعث صوبائی بجٹ کی تیاری کا عمل بھی متاثر ہوا ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر اتفاق رائے ہو گیا۔ احسن اقبال کی ترقیاتی بجٹ سے متعلق مذاکرات کی کامیابی کی تصدیق کا پی ایس ڈی پی پر حکومت اور اتحادیوں میں معاملات طے پا گئے ہیں۔ وفاق چھوٹے صوبوں پر آئندہ بجٹ میں زیادہ پیسہ خرچ کرے گا۔ سب سے زیادہ بلوچستان، پھر سندھ، اس کے بعد کے پی کے پر فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب کے لیے وفاقی بجٹ میں سب سے کم فنڈ رکھے جائیں گے۔ بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 265 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر 195 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ کے پی کے لیے 98 ارب۔ پنجاب کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے 72 ارب مختص کیے جائیں گے۔ 150 ارب کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ پشاور میں مفتی محمود مرکز میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، صوبائی حقوق کے حصول کے لیے مشترکہ جدوجہد اور آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ صوبے کو این ایف سی میں ضم اضلاع کا حصہ نہیں مل رہا۔ پنجاب نے خیبر پختونخوا کے لیے گندم کی فراہمی بند کر رکھی ہے۔ وفاق کی جانب سے گیس فراہمی میں رکاوٹیں تشویشناک ہیں۔ این ایف سی میں ضم اضلاع کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل خان آفریدی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، صوبائی حقوق کے حصول کے لیے مشترکہ جدوجہد اور آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ صوبے کو این ایف سی میں ضم اضلاع کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ پنجاب نے خیبر پختونخوا کے لیے گندم کی فراہمی بند کر رکھی ہے۔ وفاق کی جانب سے گیس فراہمی میں رکاوٹیں تشویشناک ہے۔
वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया। काबीना डिवीजन ने इजलास मुलतवी करने से मुतल्लिक कौंसिल अरकान को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास अब बुध 10 जून को होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में 10 जून को दिन 11:30 बजे होगा। वज़राए के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास चौथी बार मुलतवी किया गया है। इससे पहले 22 मई, 3 जून और 8 जून को होने वाले कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास मुलतवी किए जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जीबी में पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद पीडीएम तर्ज पर होगा। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों के दरमियान राब्ते जारी हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले पर इत्तेफाक राय हो गया है। जीबी में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर नून लीग का होगा। इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों की तकसीम का 60 और 40% का फार्मूला होगा। काबीना में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत, नून लीग को नुमाइंदगी मिलेगी। हुकूमत साजी के खदखाल तय करने के लिए आला सतह मुशावरत जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर नून लीग का होगा। ज़राए का दावा है और इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों की तकसीम का 60 और 40% का फार्मूला होगा। काबीना में पीपल्स पार्टी को अक्सरियत, नून लीग को नुमाइंदगी मिलेगी। हुकूमत साजी के खदखाल तय करने के लिए आला सतह मुशावरत जारी है। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का जादू चल गया। पीपल्स पार्टी ने 9 हल्कों में मैदान मार दिया। 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहे। नून लीग की 4 नशिस्तों में से 2 पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया गया है। एक नशिस्त मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई। जीबी 1 गिलगित में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन 10,594 वोट लेकर जीत गए। जीबी 2 गिलगित में नून लीग के उम्मीदवार हाफिजुर रहमान 13,433 वोट लेकर कामयाब रहे। जीबी 3 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 7,877 वोट लेकर कामयाब रहे। जीबी 4 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली अख्तर 7,654 वोट लेकर कामयाब रहे। जीबी 5 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फकार अली मुराद 2,705 वोट लेकर फातेह करार पाए। जीबी 6 हुंजा से पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार नेक नाम करीम 6,390 वोट लेकर जीत गए। जीबी 7 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद तौकीर मेहदी शाह 4,320 वोट लेकर कामयाब हुए। जीबी 8 में मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद कासिम 10,658 वोट लेकर फातेह करार पाए। जीबी 9 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नशाद 6,314 वोट लेकर जीत गए। जीबी 10 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नासिर अली खान 6,582 वोट लेकर कामयाब रहे। जीबी 11 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इकबाल हुसैन 5,944 वोट लेकर कामयाब रहे। जीबी 12 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम 12,944 वोट लेकर जीत गए। जीबी 15 दियामर से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद दिल पजीर 5,145 वोट लेकर फातेह करार पाए। जीबी 16 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक 6,320 वोट लेकर कामयाब रहे। जीबी 18 दियामर में नून लीग के किफ़ायतुर रहमान 5,521 वोट लेकर फातेह रहे। जीबी 19 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद जलाल अली शाह 9,303 वोट लेकर जीत गए। जीबी 20 गीजर से नून लीग के अब्दुल जहान 6,917 वोट लेकर कामयाब रहे। जीबी 21 गीजर में आज़ाद उम्मीदवार अमान अली 9,938 वोट लेकर कामयाब रहे। जीबी 22 नून लीग के उम्मीदवार इब्राहिम सनाई 10,136 वोट लेकर जीत गए। जीबी 23 गांची आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली 12,117 वोट लेकर कामयाब रहे। दियामर के हल्का 15 और 16 के 5 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग का हुक्म दिया गया है। 15 जून को दोबारा वोटिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने दियामर के हल्का GBA 16, दियामर 2 के 4 और हल्का GBA 15 दियामर 1 के पोलिंग स्टेशन पर प्री पोलिंग की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 जून को मर्द और खवातीन पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है शफाफ इंतखाबी अमल यकीनी बनाने के लिए रीपोलिंग का फैसला किया गया है, जबकि हतमी नताइज रीपोलिंग मुकम्मल होने के बाद मुरतब किए जाएंगे।
उधर GB18 दयामर के 9 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने तनगीर के मुतासिर नताइज पर रीकाउंटिंग की दरख्वास्त मंजूर कर दी। साबिक वज़ीर आला गुलबर खान ने दोबारा गिनती की काउंटिंग दी। गुलबर खान की दरख्वास्त पर 9 पोलिंग स्टेशनों के बैलेट पेपर्स दोबारा खोलने का फैसला दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर वोटों की रीचेकिंग और रीकाउंटिंग होगी। तमाम उम्मीदवारों और रीपोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में दोबारा गिनती होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक 9 पोलिंग स्टेशनों के वोट दोबारा जांचे जाएंगे। तहरीक इंसाफ का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज और हल्फ के दिन गिलगित बल्तिस्तान में योम स्याह मनाएंगे। वोट डालना अपने मनपसंद लोगों को पार्लिमान तक पहुंचाना अवाम का हक है। हेरा फेरी करना और लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने से रोकना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। इंतखाबात में प्री पोल धांधली की गई। खास मंसूबे के तहत PTI को इस पूरे अमल से बाहर निकाला गया। इस वक्त 70% पाकिस्तानी PTI के साथ है। हम इसे जाली और धांधली ज़दा इंतखाबात करार देते हैं। फ्रांस में मुकीम सिख कम्युनिटी ने गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौजी कार्रवाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 42 साल मुकम्मल होने पर पेरिस के प्लस दी ला रिपब्लिकन में एहतजाजी मुजाहरा किया। देखते हैं फ्रांस से ये रिपोर्ट। मुजाहरे के शुरा ने जून 1984 के सिख कौम के तारीख का एक इंतहाई अलमनाक बाब करार देते हुए कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार और इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात ने सिख बरादरी पर गहरे असरात मुरतब किए। उन्होंने जून 1984 में जान गंवाने वालों को खिराजी अकीदत पेश किया और सिख कौम के हकूक, आज़ादी और इंसाफ के मुतालबात का अयादा किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि सिखों की मुकद्दस इबादतगाह पर फौजी कार्रवाई और बादज़ा होने वाले वाक़यात ने सिख कौम में अलहदा रियासत खालिस्तान के मुतालबे को मज़ीद तक़वियत दी। सिख रहनुमा मान सिंह, सतराम सिंह, तारा सिंह और रघबीर सिंह ने कहा है कि सिख कम्युनिटी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आलमी बरादरी को सिखों के साथ होने वाले मुबैना मसालिम पर तवज्जो देनी चाहिए। मुकर्रिरीन ने यूरोपीय मीडिया और हुकूमतों पर जोर दिया कि भारतीय गैर कानूनी सरगर्मियों और टारगेट किलिंग के मामलात पर खामोशी करने के बजाय आवाज़ बुलंद करें और बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा करें। रहनुमाओं का कहना था कि ये एहतजाज इसलिए भी अहम है क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी G7 इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस आने वाले हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने खालिस्तान के हक में नारे भी लगाए। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में मारूफ नौजवान पाकिस्तानी मुसव्विरा और खत्तात आयशा कमाल की इस्लामी खत्ताती की खुसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने ISP इवेंट्स और फोरम फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलपमेंट के इश्तराक से किया। ब्यूरो चीफ साजिद अजीज की रिपोर्ट देखिए। नुमाइश में बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान, बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी, सिफारती शख्सियात, फ़ानून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद, मीडिया नुमाइंदान और पाकिस्तान हाई कमीशन के ऑफिसर्स ने शिरकत की। मकाम हाई कमिश्नर असीफ बिन अजीज ने अपने खिताब में आयशा कमाल की फ़नी सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि इनकी तख्लीकियात न सिर्फ इस्लामी खिताती की खूबसूरती और रूहानियत को उजागर करती हैं बल्कि पाकिस्तान की मुस्बत और सकाफती तशख़्ख़ुस को भी आलमी सतह पर फ़रोग़ देती हैं। तकरीब में ISP इवेंट्स के CEO फैसल शौकत ने आयशा कमाल के साथ एक खुसूसी नशिस्त की मेजबानी की जिसमें उन्होंने अपने तख्लीकी सफर और इस्लामी खिताती से वाबस्तगी पर गुफ्तगू की। आयशा कमाल ने कहा कि इनके फन की बुनियाद कुरान मजीद के आयात, इस्लामी तहजीब, रूहानी इक़दार और इस्लामी फन तामीर से हासिल होने वाले अलहाम है। उन्होंने इस्लामी खिताती को रूह, अकीदत और जमालियात के असीम इम्तजाज करार देते हुए कहा कि इनका मकसद कुरानी पैगामात को ऐसे अंदाज में पेश करना है जो नाज़रीन को मुतासिर करने के साथ गौर व फिक्र और रूहानी वाबस्तगी की तरफ भी माहिल करे। उन्होंने कहा कि इस्लामी खिताती मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान राब्ते का मौसर ज़रिया है और इस्लाम की खूबसूरती, अमन और हमांगी को दुनिया तक पहुँचाती है। आयशा कमाल ने पाकिस्तान की सकाफ़ती शनाख्त और इस्लामी विरसे को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने को अपने लिए एजाज़ करार दिया और अपनी पहली बरतानवी नुमाइश के इनेकाद पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन और शुरा का शुक्रिया अदा किया। नुमाइश में मौजूद अफराद ने इनके फनपारों को बेहद सराहा। सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक ने मुमलिकत सऊदी अरब बिलखुसूस अलजोफ रीजन में जारी तरक्याती मनसूबों और मुख्तलिफ शोबों में होने वाली नुमाया पेशरफ्त को सराहा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की तरक्याती हिकमत अमली खित्ते की माशी और समाजी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। सफ़ीर पाकिस्तान ने अलजोफ रीजन के स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट ऑफिस का दौरा किया जहाँ इन्हें इदारे की कारकर्दगी और तरक्याती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान मियारी सरमायाकारी के फ़रोग़, इंसानी मसाइल की तरक्की और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के नए मौके पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के इम्कानात का भी जायज़ा लिया गया। आज़म शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कसीदगी पर तशवीश का इज़हार।
वज़ीर आज़म ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। एक्स पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मशरिक़ वस्ती में हालिया तशद्दुद इस बात की वाज़ेह याद दहानी है कि कमज़ोर जंग बंदी कितने संगीन नताइज का बायस बन सकती है। पाकिस्तान अपने बरादर और शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर तनाज़े के पुरअमन और सिफारती हल के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। हतमी मकसद के हुसूल का वक्त करीब है। तमाम फरीक अमन को एक और मौका दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि तशद्दुद और तबाही की बजाय अमन और सिफारतकारी का रास्ता अख्तियार किया जाए। यही रास्ता कामयाबी की रोशन उम्मीद रखता है। अमेरिकी सदर की इस्राएली वज़ीर आज़म का साथ छोड़ देने की धमकी। कहते हैं नेतन्याहू को खबरदार किया था, ईरान के साथ जंग का दायरा फैलाया गया तो इसराइल तन्हा रह सकता है। इसराइली मीडिया ने इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमले के बाद उन्होंने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करते हुए दरख्वास्त की थी कि इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब न दे। ताम मुशावरत के बाद नेतन्याहू ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया कि उन्होंने ईरान पर हमला करने का फैसला कर दिया है। ईरानी हुकाम ने वाशिंगटन से रब्ता किया और कहा कि वो इसराइल पर मज़ीद हमले नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि इसराइल भी अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर दे। इसके बाद ट्रंप ने दोबारा नेतन्याहू से रब्ता किया और इन्हें मज़ीद हमले रोकने पर आमादा किया। अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है। तेहरान मुआहदे पर दस्तखत करना चाहता है और ऐसा मुआहदा सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। ईरान और हिजबुल्लाह पहले के मुकाबले में ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, ताहम इनके खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल पूरी कुव्वत के साथ जवाब देगा। हालिया हमलों के बाद इसराइली फौज को ईरान भर में अस्करी और इक्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाने के कमांड दिए गए थे। इसराइली वज़ीर आज़म का दावा था कि इसराइल ने ईरान में मुतअद्दिद फौजी और इक्तिसादी अहदाफ पर हमले किए, जबकि तेहरान पर हमलों के बाद ईरान ने अपनी कार्रवाइयाँ रोक दी। इसराइल को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है और जब भी जरूरत पड़ी इस हक को इस्तेमाल किया जाएगा। इनके बकौल ईरान और हिजबुल्लाह खित्ते में नई सूरत-ए-हाल मुसल्लत करना चाहते थे, ताहम इसराइल ने इनके अज़ाइम को नाकाम बना दिया। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली हालिया गुफ्तगू को मस्बत और तामीरी करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान करीबी राब्तों की अहमियत पर जोर दिया। बहरी नाकाबंदी को भी दुश्मन की एक और शिकस्त में बदल देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा है कि मफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान तयशुदा और मुतफ़िका नकात के बरक्स थे। उनका कहना था कि मौजूदा सूरत-ए-हाल से वाज़ेह होता है कि अमेरिका ना हकीकी जंग बंदी चाहता है और ना ही संजीदा मुज़ाकरात का ख़्वाहां है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मज़ीद कहा कि ईरान का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा और खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम का क़याम है। ताहम मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं किया जा सकता। ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। ईरान के फौजी कमांड सेंट्रल खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने इसराइल के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान कर दिया। ईरानी हुक्काम का कहना है हालिया ऑपरेशन अपने मकासद हासिल करने के बाद रोक दिया गया है, ताहम किसी भी नई कार्रवाई की सूरत में मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखा जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और अमेरिका ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर ईरान की जानिब से मजीद हमले नहीं किए जाते तो इनकी तरफ से भी मजीद कार्रवाई नहीं की जाएगी। ताहम इस हवाले से मुतल्लिका हुकूमतों की जानिब से फौरी तौर पर बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। इसराइल और ईरान फौरी जंग बंदी के ख्वाहां हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा, दोनों मुल्क फौरी जंग बंदी चाहते हैं। हतमी अमन मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन किसी किस्म की नादानी या हमाकत मुज़ाकराती अमल में रुकावट बन सकती है। अमेरिकी सदर का हतमी मुआहदा तय पाने तक ईरान के खिलाफ नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। कहा, मामला तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। अव्वलीन तरजीह कौमी सलामती और अवाम का अमन है। ईरानी कौम के हकूक़ का भरपूर दिफा करेंगे, किसी भी धमकी के सामने पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहा, सिफारतकारी और दिफा कौमी ताकत के दो हम सतून हैं। ईरान ने ना ही मुज़ाकरात से पीछे हटा है और ना ही मैदान को छोड़ा है। इत्तेहाद, दानिशमंदी और कौमी यकजहती के साथ ईरान इस आजमाइश से भी सुरखरू होकर निकलेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार, जबकि सोने और चांदी की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक बरतानी ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $1.27 इजाफा हुआ, जिसके बाद ये $94.36 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिकी खाम तेल 84 सेंट महंगा होकर $91.38 फी बैरल पर ट्रेड करने लगा। दूसरी जानिब कीमती धातों की कीमतों में कमी देखी गई है। सोने की कीमत $15.40 कमी के बाद $4,349 फी औंस पर हो गई, जबकि चांदी 92 सेंट सस्ती होकर $68.17 फी औंस पर आ गई है।
پنجاب ریونیو اتھارٹی کی مختلف شہروں میں ٹیکس نادندگان کے خلاف بڑی کارروائیاں، ٹیکس کی عدم ادائیگی اور ریکارڈ میں خرد برد کرنے پر 9 مقامات پر سر بمہر متعدد کو وارننگ نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ ترجمان کے مطابق لاہور میں معروف فوڈ چین کے 3 آؤٹ لیٹس کو ریکارڈ میں خرد برد پر سیل کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں ٹیکس کی عدم ادائیگی پر 2 بلڈرز کے دفاتر سر بمہر کر دیے گئے۔ فیصل آباد میں 4 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے دفاتر کو ٹیکس ادائیگی نہ کرنے پر نوٹسز جاری کیے گئے اور دفاتر سیل کر دیے۔ ترجمان کے مطابق ٹیکس گوشواروں میں جعل سازی اور بر وقت جمع نہ کروانے والوں کو بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ چیئرمین PRA معظم اقبال سپرا کے مطابق پوائنٹ آف سیل سسٹم کے تحت بل جاری نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ مسلسل ٹیکس ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ MD سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے محرم الحرام کے انتظامات کے سلسلے میں نشتر روڈ سے حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ فقہ جعفریہ کے منتظمین، ایڈیشنل کمشنر پولیس اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ MD سندھ سالڈ ویسٹ کی امام بارگاہوں اور جلوس کے راستوں کی صفائی ستھرائی، چونے کے چھڑکاؤ، زائرین کی سہولتوں کے لیے کیمپ لگانے اور جلوس کے ساتھ خصوصی ٹیمیں تعینات کرنے کی ہدایت کی۔ MD سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی نے فقہ جعفری کے منتظمین کو بتایا امام بارگاہوں کے منتظمین زیر انتظامیہ اور بلدیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ انتظامات کے لیے مکمل کوارڈینیشن میں ہیں۔ علاقوں کا دورہ کر کے صفائی ستھرائی کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دورے کے دوران متعلقہ کمپنی کو ہدایت کی کہ جلوس کے راستوں، مجالس، امام بارگاہوں اور مساجد کے اطراف صفائی کے لیے شفٹوں میں ٹیمیں تعینات کی جائیں اور ضرورت کے مطابق اضافی عملہ تعینات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ امام احمد رضا یونیورسٹی میں قرآنی جمالیات پر سائنسی اور تحقیقی سیمینار، سیلانی ویلفیئر کے تحت خواجہ محمود الدین سیلانی سینٹر فار سوشیو سائنٹیفک اینڈ صوفک ریسرچ کے قیام کا اعلان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خانہ کعبہ اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب مقدس تبرکات کی نمائش کی گئی۔ کراچی سے دیکھتے ہیں نبیل میرزاد کی اس رپورٹ میں۔ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے زیر اہتمام سیمینار میں چیئرمین سیلانی ویلفیئر اور چانسلر امام احمد رضا یونیورسٹی مولانا بشیر احمد فاروقی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سابق چیئرمین شعبہ کیمسٹری وفاقی اردو یونیورسٹی پروفیسر سید اصغر علی مہمان اعزازی تھے۔ مولانا بشیر احمد فاروقی نے دی حکمہ نیکسس حضرت خواجہ محکم الدین سیلانی سینٹر فار سوشیو سائنٹیفک اینڈ صوفک ریسرچ کے قیام کا باضابطہ اعلان کیا۔ یہاں کاوش یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کو ہم بہتر انداز میں پیش کر سکیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، کمپیوٹر کی تعلیم بچوں کے لیے، اور پاکستان کو معاشی طور پہ اس حد تک آگے لے جانا ہے کہ ہمارے اوپر جو قرضے ہیں ان کی ادائیگی ہو جائے، ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ مولانا بشیر احمد فاروقی نے بتایا کہ مرکز کے 2 بنیادی شعبے قرآنی اور سائنسی تحقیق اور تصوف اور روحانی علوم ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کے احکامات کی روشنی میں ہی لوگ دیکھتے بھالتے بھی ہیں، ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، ان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ایک اچھے طریقے سے۔ پاکیزگی ان سب کا بنیادی عنصر ہے۔ احکامات خداوندی تھے، ان کی روشنی میں ایسٹیٹکس کو یا جمالیات کو بہت بہتر بنایا۔ تقریب کے دوران ڈائریکٹر دی حکمہ نیکسس اور نامزد وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد کمال انصاری نے اسلام میں جمالیت کے موضوع پر تحقیقی پریزنٹیشن پیش کی۔ آج کی جو تقریب تھی یہ اس میں ایک سیمینار تھا جو قرآنک ایستھیٹکس یعنی قرآنی جمالیات کے اوپر، اس کے اوپر 2-3 پریزنٹیشنز مختلف اسکالرز نے پیش کی، اور اس کے علاوہ تبرکات کی نمائش تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور کعبہ شریف کے حوالے سے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مختلف طرح کے تبرکات رکھے گئے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد راشد کمال انصاری قرآن کریم کے جمالیات دراصل حسن، معنی اور پیغام کا وہ حسین امتزاج ہے جو انسان کی فکری اور روحانی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر مقررین نے علم، تحقیق، روحانی اقدار کے فروغ کے لیے ایسے علمی اور تحقیقی پروگرامز کے تسلسل کی ضرورت پر زور دیا۔ کیمرہ مین عقیل احمد کے ساتھ نبیل میرزاد، ABN نیوز، کراچی۔ صوبائی وزیر مینا خان آفریدی کی پشاور ہائی کورٹ میں پیشی، چیف جسٹس SM عتیق شاہ نے ان کے بیرون ملک سفر سے متعلق استفسار کیا۔ مینا خان آفریدی نے بتایا کہ انہیں ایئرپورٹ پر روک کر آگاہ کیا گیا کہ ان کا نام مختلف واچ لسٹوں میں شامل ہے اور پاسپورٹ بلاک ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر نام کسی اور فہرست میں شامل کیا گیا ہے تو اس کے خلاف الگ درخواست دائر کی جائے۔ عدالت معاملے کو سنے گی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے نوجوانوں کے لیے IT اور AI کے شعبوں میں مزید اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ مینا خان آفریدی نے بتایا کہ حکومت نے بجٹ میں ان شعبوں کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے ہیں۔ عدالت نے متعلقہ درخواست جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़ कॉम।